اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مہمان گرامی کا بڑا شکریہ کہ آج اس پروگرام میں راجہ طارق صاحب کی دعوت پہ آئے۔ اس کے بعد میں جناب آج کے مہمان خصوصی اور آج اس پروگرام کی رونق راجہ خالد محمود جنیوا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی لائن اسٹیج پہ۔ یہ ہمارے پورے پاکستان کی رونق ہے اور مارشل آرٹ کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں جناب راجہ مختار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں۔ راجہ مختار صاحب بھرپور تعلیم کے ساتھ۔ راجہ مختار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کشمیری کمیونٹی کی رونق ہیں، کشمیری بلکہ میں یہ کہوں کہ پورے پاکستان اور کشمیر کی رونق ہے، تو یہ بالکل بیجانا ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی پاکستان سے یا کشمیر سے کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ اس کا ٹھکانہ راجہ صاحب کے پاس ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی آن اور شان ہے۔ اس کے بعد میں جناب خان صغیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں۔ خان صغیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ آپ جب کشمیر کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام اس کے ساتھ منسوب ہے، اور کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں اور کشمیر کے لیے اپنی آواز ہر فورم پر بڑی خوش اسلوبی سے پہنچاتے ہیں، اور کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کی آواز ہیں، اور یہ واحد ملک ہے امریکہ جہاں پہ کشمیریوں کی آواز پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب راجہ طارق صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ آئیں۔ راجہ طارق صاحب آج کے پروگرام میں اس پروگرام کے دلہا ہیں اور اس تعلیم کے ساتھ، کیونکہ آج ہم لوگوں کو جو مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے وہ راجہ طارق صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں خالد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کریں، اور اس کے بعد سارے اپنے مہمان جو جن کے اعزاز میں آج یہ پروگرام ہے ان کو ویلکم بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنا بھی یہ بھی ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ خالد محمود مغل صاحب۔ ہمارے جتنے بھی آج مہمان آئے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے اور اسپیشلی طارق صاحب کی ریکویسٹ پہ آئے ہیں، میں سب کا طارق صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گرہیں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں جناب طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مہمان گرامی کا اپنے خوبصورت انداز میں تعارف بھی کروائیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آئی ایم پراؤڈ آف ہم راجہ خالد بھیا، ان کو امریکن ایوارڈ ملا ہے، تو اس کی خوشی میں نے یہ پروگرام رکھا ہے جس میں آپ سب لوگوں کی دعوت دی ہے۔ آپ تمام لوگوں کا، تمام بھائیوں کا، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اسی کے ساتھ یہ مائک واپس کو دیتا ہوں کہ یہ دوبارہ کسی اردو کی ٹائم میں میں آپ سے درد ہوں گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جناب راجہ طارق صاحب۔ میں نا ویلکم کرتا ہوں راجہ محمود صاحب کو جو پروگرام میں تشریف لے آئے، بہت شکریہ۔
رانا صاحب کا بھی تھینک یو کہ پروگرام میں تشریف لے آئے. رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بھرپور تعلیم کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم سر, انہوں نے بلایا ہے, ہم حاضر ہو گئے ہیں, آلویز دوستوں کے لیے حاضر ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بھائی کو ایوارڈ ملا یہاں پر, اور ہماری خدا سے التجا ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت سے نوازے. آمین آمین. آج کا جو پروگرام ہے یہ بیسیکلی ہمارے جو مہمان آئے ہیں پاکستان سے, ہمارے لیے فخر ہے, تو ان کے اعزاز میں ہے. اور یہ راجہ طارق صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے تمام دوستوں کو انوائٹ کیا اور دعوت دی. تو جسٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مہمانوں کو السلام علیکم, اور ہم ان کو تہ دل سے مبارک پیش کرتے ہیں. اور یہ باعث فخر کی بات ہے کہ ان کو یہاں پہ ایوارڈ ملا, یہ ہمارے لیے باعث خوشی اور تھینک یو سو مچ راجہ صاحب. اس کے بعد چودھری ارشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے فخر ہے, پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر ہے کہ امریکہ میں کسی پاکستانی اسپورٹس مین کو بلا کے اتنا بڑا ایوارڈ دینا, اور یہ ہم لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے. السلام علیکم. میں بھی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ واقعی یہ قابل تعریف ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی کو انعام ملا ہے امریکہ میں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کو بہت ویلکم کرتے ہیں, اور آپ سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو تشریف لائے ہیں. تو میری طرف سے سب تھینک یو جی. تھینک یو. اس کے بعد میں جناب خالد محمود مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ یہ قومی ہیروز جو ہیں یہ پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان کی شان ہے, اور وہ قومیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں, وہ قومیں ہمیشہ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے. تو آج کی جو شام ہے یہ ہمارے جو خوبصورت مہمان جن کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کے اعزاز میں ہے, اور میں سب سے ویسے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو خالد محمود مغل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کے پروگرام کے حوالے سے میں پہلے تو آپ سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی تھوڑے ٹائم پر آپ نے یہ نا راجہ طارق صاحب کی کال پر ان کے ٹائم نکال کر ادھر آئے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. تو دوسرا سپورٹس کا تعلق ہے, مجھے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے سامنے جن مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہاں US سے میں ایوارڈ لیا ہے, یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, جس مرضی کنٹری سے ہو, لیکن یہاں سے ایوارڈ جس کو ملے وہ بہت ہی جو ہے نا ہمارے لیے پراؤڈ ہے. تو میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, تو ان کو میری طرف سے کنگریچولیشن. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یہ تھے خالد محمود مغل صاحب. اس کے بعد میں جناب خان صغیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ٹربیوٹ پیش کریں. تھینک یو. خان صغیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate Khalid Mahmood Jinnova Sahab. It's a big honor for Pakistani and Kashmiri community, especially for us to hear that our native Pakistani has an award in America. I think that's a very huge thing. And I'd like to congratulate you, sir, and I wish you that you could get many, many more awards, and we'll be proud of you. Thank you very much. تھینک یو سو مچ. خان صغیر صاحب ہماری کشمیری کمیونٹی کی رونق ہے, اور کشمیریوں کے لیے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. میں سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی راجہ اشتیاق صاحب جو
तशरीफ़ ले आए, इनका भी बाकी भी जितने मेहमान हैं, मैं सब का दिल की तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जनाब मैं राजा मुख्तार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बात तालीम के साथ राजा मुख्तार साहब हमारी जो कश्मीरी कम्युनिटी है इसकी रौनक है, हमारे दिलों की धड़कन है। और हमेशा मैं आज अगर हम यहाँ कहीं खड़े होकर बोलते हैं तो वो राजा मुख्तार साहब की वजह से हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया और इन्होंने हमेशा कोई फ़र्क नहीं रखा कि ये बंदा ही बात कर सकता, हर बंदे को इन्होंने अप्रिशिएट किया और बोलने का मौका दिया। तो मैं इस पर इनकी दिल की तहे से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने मेहमान के लिए अपने खूबसूरत अल्फाज से इनके दिलों को जीतें। जब भी हमारा पाकिस्तान में कोई भी प्रोग्राम होगा, आने का प्रोग्राम होगा, तो इंशाल्लाह हम इनसे वहाँ भी इनसे बात करेंगे। राजा मुख्तार साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मेहमान खुसूसी को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ इस महफिल में जितने भी आए हुए हैं मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर एक आदमी का अपना एक मकाम है। मैं समझता हूँ ओवरसीज जितने भी लोग यहाँ आते हैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और उनका बड़ा नाम होता है। जब कोई वो कारनामा अच्छा करते हैं तो अपने मुल्क की इज़्ज़त होती है। तो राजा साहब हमारे लिए जो आप अवार्ड ये लेकर जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी का मकाम है। और जो मेहनत आर्ट में, मार्शल आर्ट में होती है, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा जो है ना वो जब छोटा था तो उसको शौक था, तो हमने उसको दाखिल करवाया मार्शल आर्ट में। तो बड़ी खुशी होती थी कि छोटे से बच्चे को इतना वो सिखाने के लिए जो है ना हमें दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो ये इतना आसान काम नहीं है। इससे पहले भी मैं भूल गया हूँ नाम, राजा बहुत ही यंग उम्र के थे, वो कटक से उनका तल्लक था। तो वो यहाँ अमेरिका में जब ये गेम हुई थी तो उसमें एज ए जज आए थे। तो बाद में यहीं रुक गए। उसके बाद जो है ना वो कहीं घूमते घूमते किसी दरिया पे गए तो वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ और डूब गए। मुझे उसका नाम नहीं याद रहा, लेकिन हमें उन पर भी बहुत खबर था। वो उनका एक मैं किस्सा सुना रहा हूँ कि जब वो पाकिस्तान से आए ना बहुत यंग लगते थे, तो एयरपोर्ट पर उतरे तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि मुझे यकीन नहीं है तुम मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट हो। तो उसने कहा कि आप मार्शल आर्ट को जानते हैं ये ब्लैक बेल्ट को? तो उसने कहा थोड़ा बहुत। उसने कहा थोड़ी सी जगह मुझे दो, तो मेरे को ये बिलीव हो गया कि ये बाकी ब्लैक बेल्ट है। तो राय साहब हमें रियली हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, सलूट भी पेश करते हैं। हमारे लिए आप बहुत बड़ा सरमाया है और मुल्क के लिए आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया, आपने कौम का नाम रोशन किया। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं और हमेशा वो समझते हैं कि शायद पैसा ही बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ जो है ना सबसे बड़ी ये जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं, जब अपना यहाँ से जो कुछ थोड़ी बहुत दौलत कमाते हैं तो अपने वहाँ शो करते हैं, मकान बनाते हैं। वो ये दौलत हम सियाल पत्थर करते हैं। वो क्या है कि इतनी बड़ी दौलत लगाकर आपने देखे हुए बड़ी बड़ी कोठियाँ और उसके अंदर कोई रहता नहीं है। तो कभी दुख भी होता है कि हम यही चीज़ें जो है ना एजुकेशन में लगाएं और यही चीज़ें जो है ना हमारे उन टैलेंट पे लगाएं जो मुल्क के लिए नाम पैदा करते हैं। जैसे आपने देखा हॉकी हमारा कौमी नेशनल गेम था, तो आज क्या हुआ? हॉकी के लिए कौम मतलब हुकूमत के पास इतना पैसे नहीं है कि उनकी सपोर्ट करें और वो हॉकी आस्ता आस्ता करके हमारा वो भी गेम जो है डूबता चला जा रहा है। तो ये खिलाड़ी होते हैं, इनकी हौसला अफजाई करनी होती है। ये हमारा भी फर्ज है, मुल्क का भी फर्ज है, ये हमारी हुकूमत का फर्ज है कि इन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई जो है करें और जहाँ तक हो सके खिलाड़ी मुल्क की जो है शान है। अब इन्होंने जो मेहनत की है ना, वो मैं समझता हूँ कि कोई इतने बड़े लीडर आते हैं वो भी इतना अवार्ड यहाँ लेकर नहीं जाते, बल्कि वो पाकिस्तान का उल्टा है यहाँ खर्च करके जाते हैं। जो बजट होता है वो लाखों में और करोड़ों में खर्च करके चले जाते हैं, वो अपनी अय्याशी पे लगाते हैं। तो राजा साहब ने जो नाम दिया ये हमेशा जिंदा रहेगा, जो अवार्ड दिया ये हमेशा जिंदा रहेगा। यही चीज़ें होती हैं। तो हमें जो भी करना है, मैं समझता हूँ राजा साहब तारक साहब ने हमें सही तरीके से बताया, एजुकेट नहीं किया, वरना हम आपको भी अपनी तरफ से अवार्ड देते, तो अवार्ड लेकर आते, हमें इस चीज़ का दुख है। तो इंशाल्लाह ये व्यू रहेगा। इंशाल्लाह अगर आप रहेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे।
जो कुछ आप लेकर जा रहे हैं हमें उस पर बहुत फख्र है। ये ऐसी दौलत है जो हमेशा रोशन रहेगी। तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे, क्योंकि ये चीज़ें ना आप आगे फैलाएंगे, आपके स्टूडेंट बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें। मार्शल आर्ट जो है ना, ये अमेरिका में इसको बहुत माना जाता है और दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो मैं एक दफ़ा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा आपका भी दिल से। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना एक रस्तों पे चलाए और हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी और उसके साथ जो माशी बुरहान सैलाब की वजह से पैदा हुआ, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। पाकिस्तानी अफवाज के लिए भी दुआ करते हैं जो उन्होंने मेहनत की और दिन रात एक करके जो है ना लोगों की मदद की। रियली उन्होंने अपनी जानें जो है ना वो दाव पे लगाई हैं। मैं हमारे एक जनरल जो कश्मीर के थे रावला कोट के, आपने सुना होगा, वो भी एक्सीडेंट में जो हेलीकॉप्टर में फौत हो गए। तो ये कौम एक जनरल जो ब्रिगेडियर बनता है ना, उसके लिए कितना पैसा लगता है आपको यकीन नहीं है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो ये बहुत बड़ा लाश है। तो अपनी फौज को भी और आपको भी सलाम पेश करते हैं। थैंक यू अल्लाह। थैंक यू सो मच। ये राजा मुख्तार साहब जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में राज तहसीन पेश किया। इसके बाद मैं जनाब मेहमान खुसूसी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और हमें अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तारक रुमाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं और कल जब मेरी अवार्ड सेरेमनी हो रही थी वहाँ भी वो आए, अपना टाइम निकाल के। तहे दिल से इनका मशहूर हूँ मैं। मार्शल आर्ट्स करते हुए आज मुझे 43 ईयर्स हो गए, मोर देन 4 डेकेड्स। 2017 में यूएसए से मैं पाकिस्तान मूव हुआ अपने वालिद साहब के हुक्म पर कि अब आप पाकिस्तान वापस आ जाओ। जब मैं वहाँ पे गया, पाकिस्तान के हालात देखे, तो मैंने 2 चीज़ों पे काम शुरू कर दिया। एक तो ग्रास रूट से मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया लोगों को। मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। सेकंड, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम शुरू किया। यूएस एम्बेसी के साथ मिलकर मैंने 4 प्रोविंसेस में वुमेन के राइट्स के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे सेशन दिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और उनको प्रैक्टिकली सेल्फ डिफेंस सिखाया 4 आवर्स की वर्कशॉप में कि किस तरह अपने आप को वो किसी भी डेंजर की सिचुएशन से निकाल सकती हैं, एस्केप कर सकती हैं, और मेल के साथ किस तरह काम कर सकती हैं, अपने घर में वो कैसे महफूज रह सकती हैं, ट्रैवल करते हुए पूरी उनको अवेयरनेस दिया। जब भी मैं कोई सेशन करता हूँ, अभी मैं नादरा के सारे एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पुलिस के एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक मिशन समझ के मैंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी है मार्शल आर्ट्स के लिए। मुझे यकीन नहीं था कि लाइफ में मुझे इतना बड़ा अवार्ड हॉल ऑफ फेम मिलेगा, और वो भी यूएसए में मिलेगा। जब मुझे अगस्त में बताया गया कि मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ इसके लिए, लास वेगस में एक बॉक्सर हैं, थेल टोरेंस नाम है उनका, एक और फीमेल हैं जो कमिश्नर रही हैं बॉक्सर की, फीमेल बॉक्सर की, वो फाइट्स कराती हैं लास वेगस में। उन्होंने इनको रिकमेंड किया, मेरे दोस्त हैं वो, कि पाकिस्तान से हमारे एक मार्शल आर्ट्स फ्रेंड हैं, तो आप उनकी जो है ना वो बायोग्राफी चेक कर लें। इस कंपनी ने यूएस मार्शल आर्ट्स हॉल ऑफ फेम ने मुझसे मेरी सारे क्रेडेंशियल्स मंगवाए, सर्टिफिकेट्स मंगवाए। तो कोई 1 हफ्ते के बाद मुझे बताया गया कि मैं उसके लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हूँ, और मुझे दोबारा आना पड़ेगा। 13 अगस्त को मैं पाकिस्तान गया, यहाँ से दोबारा अवार्ड लेने के लिए आया। वहाँ पे मेरी ऐसे मास्टर से मुलाकात हुई कि मुझे यकीन नहीं आता कि जो स्टाइल मैं कर रहा हूँ उसका नाम है क्योकुशिनकाई कराटे। वो बनाया गया 1964 में, लेकिन जो हमारे सोसाई जो फाउंडर थे उस स्टाइल के, वो काफ़ी सालों से उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया 1960 में इस स्टाइल की वो ट्रेनिंग कर चुके हैं जापान में सोसाई के साथ। मेरे लिए वो एक ऐसे लेजेंड थे जिनसे हैंड शेक करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक सआदत थी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में रिस्पेक्ट यहाँ से की जाती है, यहाँ से की जाती है। हम जब तक अपने टीचर्स के पाँव न पकड़ें हमें चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता।
और वही हम अपने बच्चों को पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, उनको डिसिप्लिन ऑफ लाइफ सिखाते हैं। मार्शल आर्ट्स कुछ लोग समझते हैं कि ये पंच मारने का या किक्स मारने का एक वो तरीका है, लेकिन नहीं, ये तो एक डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है कि लाइफ आपने कैसे गुजारनी है। तो राजा तारिक अग्रवाल साहब, मेरे सारे भाई सुन रहे हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान में इस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि कोई भी फीमेल अनप्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। मैं उन सबको इतना एजुकेट कर दूँगा पाकिस्तान में कि उनको अपने फादर, ब्रदर, हस्बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेली सर्वाइव कर सकती है। इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ से कनाडा जा रहा हूँ। मेरे जो टीचर हैं यूएसए के, एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अमेरिकन क्यूबिशन ऑर्गेनाइजेशन, उससे मैं 1991 से मुंसलिक हूँ। मेरे टीचर कनाडा में टोरंटो में, उनसे मिलने जा रहा हूँ कल। पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता हूँ एक जापान की ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड सो क्यूबिशन कराटे, उसका कंट्री हेड हूँ। और मेरे अंडर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सैकड़ों सेंटर्स हैं जो मेरे अंडर वहाँ पे चल रहे हैं। अभी 15 और 16 अक्टूबर को हमारा नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, जिसमें छोटे बच्चे, फीमेल्स और बड़े फाइटर जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा। जिस भाई के साथ मेरा कॉन्टैक्ट होगा उसको मैं भेजूँगा। बल्कि मैं दावत देता हूँ कि अगर कोई देखना चाहता है रियल फाइट्स, बेयर हैंड्स, कैसे आप पंच खा सकते हैं, किक मार सकते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक आदमी किस तरह इतना टफ हो सकता है। क्यों, वो अगर पानी भी पी रहा है, आप उसको पंच मारे तो वो पानी पीना बंद नहीं करेगा, पूरा गिलास पी लेगा, लेकिन होगा उसको कुछ नहीं। उसकी मैं एक वीडियो, अगर यहाँ पे स्क्रीन होती तो आपको चंद चीज़ें दिखाता है, लेकिन स्क्रीन नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ। सब भाइयों ने यहाँ अमेरिका में अपनी कि आप पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हम आज़ाद कश्मीर में चौई में कोई ऐसा एक सेंटर के लिए कोई वर्क करें। और ये जो आपने वुमेंस की डेवलपमेंट के बारे में बात की है, उसके लिए भी कोई मेडिकली अगर कोई खिदमात होंगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। और मैं स्पेशली आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मार्शल आर्ट का एक कोई ऐसा अदारा हमारे इलाके में भी होना चाहिए कि वहाँ के भी जो बच्चे हैं वो इस आर्ट को सीख सकें और अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो एक बार फिर मैं सब भाइयों का दिल के तहे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो विज़िट होगा वो राय साहब और हम सब मिल के वहाँ पे अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ एक तो आप हमारे इलाके का भी विज़िट करें और साथ ये है कि वहाँ एक ऐसा सेंटर आप बनाएं। आपके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई ना कोई बैरून मुल्क से भी सपोर्ट इंशाल्लाह हमारी भी रहेगी और कोई ना कोई भी और भी किसी मुल्क से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। और वहाँ पे क्योंकि आज की जो नौजवान नस्ल है वो डिफरेंट गेमों में और डिफरेंट कामों में लगी हुई है, तो उसको एंगेज करने के लिए ये सब खेलों में जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी से हम जो ये नई नस्ल है इसको बचा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं तमाम मेहमानों का दिल के थागन से शुक्रिया अदा करता हूँ। और राजा साहब जो हमारे आज की इस रौनक महफिल के हीरो हैं और पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं, इनका भी मैं दिल के थागन से शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं हमेशा हम कनेक्ट रहेंगे और आपके जितने प्रोग्राम्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे, इंशाल्लाह बताता रहेगा। तो राय तारिक साहब की तरफ से तमाम मेहमानों का, तमाम भाइयों का दिल के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा गुलजार साहब कीमती टाइम मुझ के आए, ज़हीर साहब आए, बाकी भी जितने अहबाब जिन्होंने इस राजा शबीर साहब, थैंक यू सो मच। और बाकी भी जितने मैं सब के नाम से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन साहब का मैं दिल के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी खालिद साहब आपका दिल के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार साहब, चौधरी अजहर साहब, सबका मैं दिल के तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मिल बैठने का एक मौका जो राय साहब ने प्रोवाइड किया है। और आज मुझे यकीन करें कि इतनी खुशी हो रही है कि हम एक ऐसी तकरीब में बैठे हुए हैं कि हमारे सामने पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो इतना काम कर रहे हैं, उनके लिए हम इखराज तहसीन पेश कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक दिन हमारे इलाके के लोगों में भी इस तरह का एक
स्कूल शुरू होगा, जिसमें ये हमारे आज के जो नौजवान हैं ये इन खेलों में अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। अना अभी